Hello everyone, Namaste. So this session is about the introduction to psychology. There are a number of questions and much curiosity in those who wish to study psychology for the first time. पहली बार जो पढ़ना चाहते हैं उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न होते हैं और बहुत तरह के रीजंस होते हैं साइकोलॉजी पढ़ने के लिए. Some may take it up as a subject at school or college level, while others may choose to understand psychology to know oneself, understand the causes of unusual incidences taking place in life, and finding the answer of mystery of human behaviors. कोई ऐसा बिहेवियर करता है, वो अजीब लग रहा है, वो क्यों करता है ऐसा, उसके पीछे क्या कारण है, उसको कैसे समझा जाए, इस चीज़ के लिए भी लोग साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और उस नॉलेज को फिर वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहते हैं. There are many others who also look for career prospects in psychology. आगे अपने करियर को लेकर वो साइकोलॉजी की फील्ड में बढ़ना चाहते हैं. उसमें कितने सारे स्कोप हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए भी वो साइकोलॉजी को चूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट इनिशियली. And it is also very interesting to know that most people believe that they will come to know what is going on in others' mind if they understand psychology. वो सामने वाले के मन को पढ़ पाएंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को पढ़ पाएंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हम जब जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे हमारी नॉलेज और इसमें स्ट्रेंथन होती जाएगी तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं कि हम सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं. तो ये भी एक मिस्ट्री है और इसको हम धीरे धीरे समझेंगे. So let's begin by knowing first of all what psychology is. So earlier in the beginning it was said that the term psychology is derived from two Greek words. One is psyche and the other is logos. Psyche means soul and logos means science or study. Thus it was a study of soul or mind. आत्मा या मन को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए ये एक साइंस है, इस तरह से बोला जाता था. But with time psychology has included range of phenomena in its study and established itself as a scientific discipline which deals with individuals as well as groups for their mental processes, experiences and behaviors. It deals in what it studies and how it studies. वो इसमें डील करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या क्या आना चाहिए इस चीज़ पर बात हुई है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चीज़ इसके दायरे से बाहर होगी और कौन सी इंक्लूड की जाएगी और उन चीज़ों को पढ़ा कैसे जाएगा. तो इस चीज़ को लेकर साइकोलॉजी है. तो अगर हम इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, वी कैन से that psychology can be defined formally as a science which studies mental processes, experiences and behaviors in different contexts. तो अब इसमें तीन चीजें हैं, mental processes, experiences and behaviors. तो इनको पहले हम अलग अलग समझेंगे. What are mental processes? So mental processes refer to the state of consciousness or awareness. जो चीज़ें हम जानते हैं उस बारे में mental processes होते हैं. We use our mental processes when we think or we try to solve a problem, to know or remember things. At one level, these mental processes are reflected in the brain activities which can be observed through different brain imaging techniques. Still, the mental activities and neural activities are not all. उसके अलावा बहुत कुछ है. So these may be overlapping but not identical. जो mind function करता है और जो brain function करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें भी हैं. Mind does not have a structure and location in body unlike brain. ब्रेन हमें पता है कि कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन है, उसका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन माइंड का ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है बॉडी में कि ये इस पर्टिकुलर जगह पर है. So what happens? It emerges and evolves
with our experiences and interactions. जैसे जैसे हम कुछ अनुभव करते हैं, जैसे जैसे हम एक्टिविटीज करते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं, उसी के साथ ये बनता है और ग्रो करता है. तो जितने तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, उतना ही मेंटल प्रोसेसेस में भी ग्रोथ होती है. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है डेफिनेशन में, एक्सपीरियंसेस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपीरियंसेस? सो व्हाट आर एक्सपीरियंसेस? एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर. हम सबके एक्सपीरियंस हमारे व्यक्तिगत हैं, हमारे पर्सनल हैं. एक ही चीज़ को मैं एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और वही दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है. जैसे एक एक्सीडेंट सीन है ना, तो मैं उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ अलग तरह के होंगे. शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पेनफुल लग रही होंगी वो चीज़ें और मुझे ज़्यादा समय तक वो याद रह जाएंगी. जबकि शायद कोई प्रैक्टिकल इंसान जो उनकी मदद भी कर रहा है उस वक्त, वो उसके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग होंगे. किस तरह से सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब्जेक्टिव हैं, व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हैं इन नेचर. Thus, our own experiences are embedded in our consciousness and awareness. Experiences are influenced by internal and external conditions of experiencer. जो अनुभव कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है या वो किस तरह का इंसान है, और जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हो रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस उससे किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गर्मी के दिन में एक बहुत ही क्राउडेड बस में बैठ के जाना एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग देगा और ऐसा लगेगा ये बहुत ही एक लंबा एक ट्रैवलिंग टाइम है या ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, अनकंफर्टेबल है और जल्दी से ये टाइम पूरा हो और हम अपने अपने घर जाएं. लेकिन यही सिचुएशन, ये क्राउडेड बस हॉट समर डे में ये नॉर्मल भी हो सकती है और शायद फन हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं. सो दिस इज हाउ द सेम सिचुएशन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफरेंटली. तो अब थर्ड चीज जो इसकी डेफिनेशन में है साइकोलॉजी में, दैट इट स्टडीज बिहेवियर. बिहेवियर कैसे स्टडी करता है ना, व्हाट आर बिहेवियर्स. हम बड़े आराम से कहते हैं उसका बिहेवियर ऐसा है और मेरा बिहेवियर तो बहुत अच्छा था वहाँ पर और आज ये बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहा है. तो हम क्या समझते हैं बिहेवियर से? सो बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन. जो भी हम करते हैं, जो रिस्पॉन्सेज देते हैं, अगर हमें बाहर से कुछ इस तरह का कुछ रीज़न मिलता है उसके बदले हम एक रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा बिहेवियर है. सच एज आवर आई ब्लिंक्स लाइक दिस व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट अस. कोई फेंक के कुछ मारता है तो हमारी पलकें अपने आप ही बंद हो जाती हैं. या फिर हम कोई हमारा फेवरेट टीम जीत जाती है तो हम अचानक से कूद कर और चिल्लाते हैं, चीयर अप करते हैं. ये भी एक रिस्पॉन्स है. वी आर शाय ऑन मीटिंग स्ट्रेंजर्स. जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम थोड़ा शर्माते हैं. ये भी एक तरह का बिहेवियर है. सो बिहेवियर्स में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. बहुत साधारण से बिहेवियर हो सकते हैं या बहुत जटिल हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. दे मे बी शॉर्ट और एंड्योरिंग. एक पल भर के लिए हो सकता है या बहुत लंबे समय तक चलने वाला बिहेवियर हो सकता है. ऑल बिहेवियर्स आर ईदर ओवर्ट और कोवर्ट. या तो वो बाहरी तौर पे दिखते हैं या फिर छुपे हुए होते हैं. तो जिन बिहेवियर्स को हम देख सकते हैं which can be seen by others are overt behaviors, whereas covert behaviors are more subjective and are internal to the person. मैं अंदर से क्या सोच रही हूँ या कैसा फील कर रही हूँ, ये मेरा covert behavior है. लेकिन कोई मुझे देख रहा है कि मैं रो रही हूँ या मैं चिल्ला रही हूँ, वो मेरा overt behavior है. ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरह के बिहेवियर्स होते हैं और ओवर्ट और कोवर्ट ही होते हैं सारे बिहेवियर्स. So all behaviors are associated with or triggered by some stimulus in the environment or changes in the person or within us. इंटरनली जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हम बिहेवियर्स करते हैं और एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में अगर कुछ चीज़ हैं जो ट्रिगर कर रही हैं बिहेवियर्स को तो उससे भी हम रिस्पॉन्स देते हैं और बिहेवियर करते हैं. सो बिहेवियर्स आर स्टडीज एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स वो है जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, स्टिमुलस क्या है, रीजन.
जो कि उस रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर रहा है. So like this, psychology includes mental processes, experiences and behaviors. Now let us understand as a subject or as a discipline psychology को कैसे पढ़ा जाता है. और ये एक बहुत ही versatile nature है इस सब्जेक्ट का, इस डिसिप्लिन का, कि इसको नेचुरल साइंस की तरह भी पढ़ा जा रहा है और इसको एक सोशल साइंस की तरह भी. इसको साइंटिफिक नेचर देने के लिए इसको नेचुरल साइंस की तरह पढ़ते हैं, और क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है इसलिए इसको सोशल साइंस की तरह भी पढ़ते हैं. तो दोनों ही तरह से इसका स्कोप है. So psychology is studied as a natural science in the modern time because of the application of scientific method. However, it has roots in philosophy. ये निकला philosophy में से है, लेकिन इसको scientifically पढ़ा जा रहा है. So modern psychology जो ज़्यादा emphasize करता है वो objectivity पे करता है. जैसे H2O, इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर रेशो में अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो वो पानी बनेगा, इसी तरह से हम किसी और देश में मिलाएंगे तो भी पानी ही बनेगा. तो दिस इज ऑब्जेक्टिविटी किसी भी चीज़ की, है ना. तो हम जो साइकोलॉजी को मॉडर्न टाइम में पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे पढ़ते हैं, और साइकोलॉजिस्ट ने इसी बेस पर काफ़ी सारी थ्योरीज डेवलप करी हैं, जैसे लर्निंग, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन और भी काफ़ी सारी, है ना. तो थ्योरीज क्या है? थ्योरीज बस एक स्टेटमेंट है टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, जिनको ऐसे साधारण भाषा में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको एक थ्योरी डेवलप करके साइंटिफिकली और उस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है और समझाया जाता है. So, based on the theory, scientists deduced or proposed a hypothesis. उन theories के बेस पे वो एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा. ये एक hypothesis है, एक काल्पनिक उत्तर है, और इस hypothesis को फिर टेस्ट किया जाता है true या false के आधार पर. ये जो हमने कल्पना की थी या जो उत्तर का हमने अनुमान लगाया था वो सही है या नहीं है, इसको फिर एक साइंटिफिकली तरीके से प्रूव किया जाता है. डेटा गैदर करते हैं, अलग अलग मेथड से उसको फिर उसको एनालाइज करते हैं, एम्पिरिकली टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर पता लगाते हैं तो उसका उत्तर सही है या नहीं है, इस चीज़ पे हम पहुंचते हैं. तो इस तरह से चीज़ों को नेचुरल साइंस की तरह से साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है. फिर साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस कैसे पढ़ते हैं? इट फोकसेस ऑन ह्यूमंस एज सोशल बीइंग. वो मानता है साइकोलॉजी कि जो इंसान है वो सोशल बीइंग है, वो सामाजिक प्राणी है. इट स्टडीज द वेरिएशंस इन बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल सराउंडिंग्स ऑन पीपल. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं जो हम पे असर करती हैं और हम तब पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं. It explains how people are similar in many ways yet different in same social environment. एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, या एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग या एक जैसा बिहेव कर सकता है. एग्जाम्पल, दो भाई जिनके फादर एडिक्ट हैं, अल्कोहल एडिक्ट हैं, वो दोनों भाई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही रास्ता लें और फादर को देख के सीखें कि वो एडिक्ट हैं तो हमें भी एडिक्ट होना है, हमें भी अल्कोहल लेना है. हो सकता है एक भाई ये सिचुएशन देख के तय करे कि मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है अल्कोहल को, जबकि दूसरे को लगता है कि फादर भी तो करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें बुराई क्या है. तो सेम सिचुएशन है, सेम सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट भी आसपास सेम है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा जो सोशल सराउंडिंग है ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो उस व्यक्ति के हैं वो किस तरह से डील कर रहे हैं उसके व्यवहार को मोल्ड करने में. सो ऑल दिस इज स्टडीड इन साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. So now we will understand a little about mind and behavior. साइकोलॉजी में इस वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल होता है माइंड, लेकिन अगर डिफाइन किया जाए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि माइंड है क्या. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि साइकोलॉजी में बिहेवियर और माइंड का रिलेशन क्या है ऑफ माइंड. सो इफ वी गो बैक अ लिटिल,
शुरू में ये एक टर्म बहुत आया था साइकोलॉजी में, दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एक तो इसके होने का नहीं पता था कि बॉडी में कहाँ होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, और साइंटिफिकली नहीं पढ़ा जा रहा था, तो माइंड के एग्जिस्टेंस को बता पाना बहुत मुश्किल था, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इस टर्म को हटा दिया गया। लेकिन बाद में स्पेरी जो कि एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे और पेनरोज जो फिजिसिस्ट थे, इनकी वजह से ये शब्द माइंड को वापस लाया गया, एंड दिस वाज अगेन इंक्लूडेड इन साइकोलॉजी। तो अब ये जो इनका दोनों का कनेक्शन है बिहेवियर का और माइंड का, ये क्या है? सो मेनी साइंटिस्ट से दैट माइंड एंड ब्रेन आर नॉट द सेम, though they are connected. Brain is a part of the body and it has a location. वो हेड में उसका लोकेशन है और उसका एक स्ट्रक्चर है, whereas mind has its own entity. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। वो आगे कैसे स्टडी हुआ, क्या चीज़ें हुई, उस पर हम आगे बात करेंगे, बट इट वॉज प्रूव्ड दैट माइंड का एग्जिस्टेंस है, भले ही उसका स्ट्रक्चर और लोकेशन बॉडी में नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन विदाउट ब्रेन्स इन्वॉल्वमेंट, कि दिमाग उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी माइंड अपना काम कर रहा है। इसके जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक एथलीट हुआ करते थे जिनका एक्सीडेंट की वजह से उनका हाथ काट दिया गया, वो हाथ का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते थे, तो ब्रेन से वो कनेक्शन नहीं रहा, हाथ का ब्रेन का वो वाला हिस्सा अब उस हाथ को रेगुलेट नहीं करता था। उसके बाद भी उन एथलीट को अपने हाथ के होने का महसूस होता था, उनको ऐसा लगता था मेरा हाथ है। कभी एक बार किसी ने उनको एक कॉफ़ी ऑफर करी और उन्होंने वही वाला हाथ आगे बढ़ाया कॉफ़ी उठाने के लिए, तो दूसरों को तो नहीं दिखा वो हाथ क्योंकि वो था ही नहीं, तो जो कॉफ़ी दे रहे थे उन्होंने कॉफ़ी पीछे हटा दी। तो ऐसे में वो जो एथलीट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मैं तो कॉफ़ी उठा रहा था। सो दिस वाज सच अ सरप्राइज कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा वो हाथ नहीं है। सो दिस वाज समथिंग दैट वर्कड एंड दिस साइंटिस्ट से कि ये माइंड की वजह से था। और ये जो फैंटम आर्म बोलते हैं, जो है नहीं लेकिन उनको महसूस हो रहा है, ये वाली चीज़ उनको माइंड के होने का बताती है। इसी तरह से मेंटल इमेजरी को इस्तेमाल करते हैं फोबिया को दूर करने के लिए, जो इर्रेशनल फियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डर होते हैं लोगों के मन के अंदर, उसके जो इलाज हैं उसको मेंटल इमेजरी से करते हैं। इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं जिसमें कि द पर्सन क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट, एक बहुत सूदिंग, एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट वो विजुअलाइज करता है और उसकी वजह से उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको वो हील करते हैं। तो ये सब ब्रेन से नहीं हो रहा है, ये सब माइंड से हो रहा है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया। So now we will talk about evolution of psychology. ये इवॉल्व कैसे हुई, ये डेवलप कैसे हुई, कौन कौन सी स्टेजेस थी, क्या क्या चेंजेस आए, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। So psychology grew out of ancient philosophy concerned with questions of psychological significance. फिलॉसफी बहुत पुराना एक डिसिप्लिन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जाती रही हैं। उसी में कुछ ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो साइकोलॉजिकल है नेचर में, जिनका जो आंसर है वो फिलॉसफी में अवेलेबल नहीं था, उनको स्टडी करने के लिए एक ब्रांच की तरह से डेवलप किया और नाम दिया साइकोलॉजी, हिंदी में मनोविज्ञान। It formally started as modern psychology in 1879. तो मॉडर्न साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन साइंटिफिक वे में जब इसको शुरू करना था, फॉर्मली शुरू करना था, तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई गई जो विल्हेम वुंट ने बनाई थी जर्मनी, लीप्जिग में, और ये बनाई थी 1879 में। And Wundt wanted to study conscious experience and analyze the building blocks of mind. Mind बना कैसे है और वो experiences क्या होते हैं, conscious experiences क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में वो पढ़ना चाहते थे। तो इसकी काफ़ी सारी stages हैं जिनको बोलते हैं schools of psychology। तो जो सबसे पहला school of psychology कहा जाता है, that is introspection and structuralism. This was started in the time of Wundt, Wilhelm Wundt, जिन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई थी।
It was a procedure in which individuals were asked to psychologically experiment to describe their own mental processes. वो खुद क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वो खुद बताएं. This method was considered less scientific as introspection reports could not be verified by any other person. कोई और उसको नहीं समझ पाता था कि जो इन्होंने बताया ये वैसा ही महसूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. And in this period, psychologists analyzed structure of mind through introspection. Thus it was called structuralism. इसीलिए स्कूल का नाम दिया गया structuralism. Then came functionalism. This was developed by William James. विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई ने इस चीज़ को काफ़ी प्रोपगेट किया है. और विलियम जेम्स ने एक और लेबोरेटरी बनाई थी मैसेच्यूसेट्स में. ये सेकंड लेबोरेटरी थी. दे टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइंड रादर देन स्ट्रक्चर. वो ये नहीं कहते थे कि माइंड बना कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. वो बात करते थे कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है. What the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment. How behavior enables people to satisfy their needs. How human beings seek to function effectively by adapting to their environment. अपने environment से accommodate करते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए वो किस तरह से function करते हैं, इन चीज़ों पर बात की. Then next came into existence which was called Gestalt psychology. This came in 20th century. इसमें जो focus था that was on the organization of perceptual experiences. Perceptual experiences क्या होते हैं? जो भी हम sense organ से ग्रहण करते हैं. Whatever we feel, whatever we sense through seeing, through touch, through hearing, smell, taste, ये सब चीज़ों से हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं. ये परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन पर बात की गई थी. तो ऐसा नहीं है, वो ये कहते थे कि सिर्फ हमने जो टुकड़ों में चीज़ें देखी है वो काफ़ी नहीं होता था कि हम उसके बेस पे बताएं कि ये चीज़ है. हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उस थिंकिंग को, उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम बताते हैं ये क्या चीज़ है. तो टुकड़ों में देखी गई चीज़ कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन जब हम एज अ होल सिचुएशन को देखते हैं तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड, टू इंटरप्रेट, टू टेल अबाउट दैट सिचुएशन. सो इट इज़ मोर देन अ सम ऑफ कंपोनेंट्स. छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम सम अप कर ले उससे भी ज़्यादा है वो जो हम. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं जैसे रैपिड मूविंग सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स. बहुत जल्दी जल्दी हम जब स्टिल पिक्चर्स को मूव करते हैं तो वो एक मूवी की तरह लगता है. दैट गिव्स अस एन इम्प्रेशन ऑफ अ मूवी कि कोई चल रहा है. एंड फ्लैशिंग बल्ब्स गिव्स एन एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग लाइट्स. जल्दी जल्दी अलग अलग जगह पर जो बल्ब जलते हैं, किसी लड़ी में भी आपने देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि एक लाइन जा रही है लाइट्स की. सो नेक्स्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी केम बिहेवियरिज्म. This came in 1910 and the main person for this was John Watson. He was also known as father of behaviorism. Watson rejected ideas of mind and consciousness. उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि mind और consciousness कुछ नहीं होता है. He was more influenced by Ivan Pavlov's work on classical conditioning. This we will do later, what is conditioning and what is classical conditioning. तो इवान पावलोव का जो काम था इस तरह वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. He focused on observable and verifiable. जो चीज़ हमें दिखती है और जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया था. So Watson defined psychology as a study of behavior and responses to stimuli which can be measured and studied objectively. उन्होंने बिहेवियर को एक रिस्पॉन्स की तरह बताया कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स. हमें कोई जब बाहर से स्टिमुलस मिलता है हम रिस्पॉन्ड करते हैं और इस रिस्पॉन्स को मेजर भी किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिवली स्टडी भी किया जा सकता है. ये उन्होंने बताया. Then Skinner actually popularized behaviorism later on. The next school in the evolution of psychology was psychoanalysis.
तो साइको एनालिसिस का जो सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है वो सिगमंड फ्रॉइड को दिया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड proposed the radical view of human nature. He explained behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts and gratification of pleasure-seeking desires, and these desires are mainly sexual in nature, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसी पर बेस्ड आगे बहुत सारी थेरेपीज भी बनी। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा नाम आता है दैट इज कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, हु एम्फसाइज्ड द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इनर स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। उन्होंने जोर दिया है कि इंसान को एक आज़ादी होनी चाहिए अपने मन की बात कहने की, अपने डिसीजंस लेने की, और एक नेचुरली जो वो जैसे ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रो होने देने की आज़ादी होनी चाहिए। और उनके जो इनर पोटेंशियल्स हैं, जो भी उनके अंदर काबिलियत हैं, पोटेंशियल्स हैं, खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको अनफोल्ड होने देना चाहिए। तो इस पर बेस्ड जो थेरेपीज़ हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। एक और लास्ट जो इसमें हम स्कूल कह सकते हैं इवोल्यूशन के दौरान जो साइकोलॉजी को पढ़ते हुए एक और टर्म आई है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट करना मतलब संरचना करना, क्रिएट करना। तो इसमें दो बहुत कॉमन नेम्स हैं, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। They involve cognitive perspectives such as thinking, understanding, perceiving, memorizing, problem solving, etc., by which knowledge of world develops. ये सारी चीज़ों से हमारी जो दुनिया की तरफ जो नॉलेज है वो हमारी डेवलप होती है। जो भी हमारे आसपास है और सोशल एनवायरनमेंट है, इसमें एक्सप्लोर करते हुए वो अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिवली, ऐसा कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा गया है। सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ साइकोलॉजी इवॉल्व्ड टू व्हाट इट इज नाउ। आज वो जिस तरह की है वो कैसे बनी, इतनी सारी स्टेजेस उसमें होती हैं। So when we talk about development of psychology in India, it is not very old, it is recent. Initially it was dominated by Western psychology. It still has its history. It started in the Department of Philosophy in Calcutta University when experimental psychology was introduced, and the first psychology laboratory was established in 1915. Applied psychology was introduced in 1938 and the main इसमें जो एक खास नाम आता है डेवलपमेंट में दैट इज डॉक्टर N. सेन गुप्ता। एंड डॉक्टर सेन गुप्ता was trained in experimental tradition of Wundt, विल्हेम वुंट जिनकी हमने बात करी है पहले, उनकी एक्सपेरिमेंटल जो ट्रेडिशन है उसमें इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। दूसरा नाम आता है प्रोफेसर जी बोस। प्रोफेसर बोस वॉज ट्रेन्ड इनटू फ्राइडियन साइको एनालिसिस। जो सिगमंड फ्राइड की हमने बात करी है, उनके जो ट्रेंड है उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, एंड ही देन टुक दिस फर्दर इन इंडिया। Professor Bose established Indian Psychoanalytical Association in 1922. After this, universities of Mysore and Patna were other early centers of teaching and research in psychology. Utkal. Apart from this, Utkal University in Bhubaneswar and University of Allahabad are two centers of excellence supported by University Grants Commission. और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में करीब 70 यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजी के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। There was a book by Durganand Sinha, Psychology in the Third World Country, The Indian Experience, and this came in 1986. इस बुक में उन्होंने 4 फेजेस की बात करी है जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं इंडिया में किस तरह डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट वाज टिल इंडिपेंडेंस, व्हिच एम्फसाइज्ड
on experimental, psychoanalytical, psychological testing and research. और सेकंड जो फेज था दैट वाज टिल 1960s and it focused more in addressing the problems in Indian society and took mainly problem oriented researches. Third phase was that of indigenization, which started during late 1970s. It stressed the need for developing an understanding based on a culturally and socially relevant framework. It focused on traditional Indian psychology which came from ancient texts and scriptures. जो पुरानी बातें जो ग्रंथों में कही गई है या पुराने वेदों में जो चीज़ें बताई गई हैं वहाँ से जो चीज़ें उन्होंने कनेक्ट करके इस फेज में उस चीज़ को हाईलाइट किया है. And at present, India is also contributing significantly in the field of psychology in the world. So this is a big achievement. And this is much appreciable that India has grown so much in the field of psychology. We are going to learn more about how it expanded and what are the different branches in which it has established itself. So we will be doing the scope of psychology in the coming session. Namaste.